Eurodreams. How may I help you? Hello ma'am, everything in my application was just right, but just because I did not give IELTS, I got rejected. Hello sir, I gave IELTS even I submitted the application before the deadline. All was good, but they still rejected me. Hello ma'am. In my case, everything was right. I gave IELTS, applied during the first call, but I don't know why they still rejected me. You see, every year thousands of Indian students apply for abroad education, and especially to Italy with its free education and increasing competition. But in midst of everything, all of the students majorly receive is a rejection from their preferred university. When you look at the example that we have given you, this girl on the one side did everything correct. She had good marks, she had right documents, she did it, and the first call or second call, but she got rejection. On this side, she did everything correct, just like her. She had good marks, documents were right, Europa CV was good, SOP was good, she applied before deadline, everything was correct, and again she got just one thing, all from that was a rejection. And the last example that we shown here was she did everything to perfection actually. जो इन दोनों लड़कियों ने किया था, she did everything correct. 97%, a good SOP, a good Europa CV, a good interview when it was conducted with the university, and everything was correct. She submitted it even in the first or second call, but all she heard from the university is a rejection. And not just these three examples, but there are so many people who in the end all they hear is a rejection. In September intake of 2024, we submitted more than 2,000 applications in more than 35 plus public universities. And there are things that we learned out of it. Not just in 2024, but in our business from last 5 years, we have learned a lot about how applications work and how universities work. And these are the things that you don't need to do if you are applying to any of the university in Italy. And there are actually there are 9 reasons that will cause problems for you and will surely bring rejection to your profile. What are they? We shall find out in this video. Okay, straight to the point कि सबसे बड़ी problems में से सबसे पहली problem है, I'll start with an example. आप है एडमिशन कमेटी के हेड, आई एम द स्टूडेंट कमिंग टू योर यूनिवर्सिटी, एंड इन योर यूनिवर्सिटी ऑल यू रिसीव एज अ एडमिशन कमेटी इज अ यूरोपा CV from my side, SOP and some educational documents. The moment you pull out my Europa CV, all you see is a bad format. Formatting is not correct, alignment is not correct, about me section is not up to the mark. At the same time, everything that I have written is little irrelevant to the part that I am going to do with your university. Upper case में कुछ letters है, कुछ lower case में है. In this situation, tell me one thing, will you give rejection or acceptance in your university? Will you give admission to me if I am the one with this profile applying to your university? Absolutely a big no. You will give me a straight rejection because of my first impression, which is amongst the worst that I could ever make. And that brings us to our first problem, that is a really bad EPCV. The पहला reason जिसकी वजह से आपको rejection आएगा. Okay, moving on. The next thing that you will do is, let us suppose जो आपने यूरोपा CV बनाया था वो अच्छा बनाया था, and then you talk about your SOP too. Now the problem is, in your Europa CV what you have stated is that you are good at this X thing, but the moment I shift your Europa CV and then look at your SOP, what you are saying is you are good at Y thing. Now there's a difference. आप यूरोपा CV में बोल रहे कि आप X चीज़ में अच्छे हैं, but when I look at your Europa SOP, what you are saying is that you are good at Y thing. Now this difference will cause problem because there is no sync in it. अब sync कैसा होता है? For an example, यूरोपा CV में आप बोल रहे हैं कि आपके 92% है, SOP में आप जब मेंशन कर रहे हैं आपने गलती से 90% मेंशन कर दिया, आपने 91 कर दिया है. ये जो सिंक है, ये जो डिफरेंसेस है, दिस विल कॉज प्रॉब्लम. देयर शुड बी अ प्रॉपर सिंक बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स. ये हमेशा कहा जाता है, नॉट जस्ट इन एप्लीकेशन बट इन वीजा ऑल्सो दिस विल हेल्प.
दैट मीन्स बहुत अच्छा सिंक ज़रूरी है. इट कैन हैपन ऑन वेराइटी ऑफ बेसिस. रिलेवेंसी पे हो सकता है, वर्क एक्सपीरियंस पे हो सकता है, डेट्स पे हो सकता है, डॉक्यूमेंट में जो नंबर्स होते हैं जो बहुत टिपिकल इन्फॉर्मेशन होती है जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर वो दोनों डॉक्यूमेंट में अलग अलग है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. एंड दिस ब्रिंग्स टू अस टू आवर सेकंड पॉइंट विच इज़ अबाउट sync between your Europass CV and SOP, which is very important. Okay, in our first example जहाँ मैंने आपको बताया था that everything was correct with this girl, she did everything right, she submitted everything on time, सब कुछ इन्होंने सही किया था, फर्स्ट कॉल में तो सबमिट नहीं किया था. Exactly, right thing. That is the problem. She didn't submit on time. आपने डेडलाइन से पहले किया है but you didn't submit it early. Actually क्या होता है, मैंने डेडलाइन सेट करके रखी है मेरी यूनिवर्सिटी की from 1st January to 31st January. But the reason that by 20th January मेरे पास सारी सीट्स फुल हो गई है. तो इस सिचुएशन में दो डेडलाइन मेरी 31st जनवरी तक की है बट 20th को अगर मेरी सारी सीट्स फुल हो जाएगी तो इवेंचुअली आई हैव टू गिव यू अ रिजेक्शन इफ यू आर कमिंग टू माय यूनिवर्सिटी. एग्जैक्टली द नंबर 3 पॉइंट इज नंबर ऑफ सीट्स. एक्चुअली यूनिवर्सिटी के पास अब सीट्स नहीं है आपको देने के लिए. दो यू सबमिटेड इट बिफोर डेडलाइन बट दे डोंट हैव सीट्स. इसीलिए हम बोलते हैं जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए. अप्लाई इन फर्स्ट कॉल, अप्लाई इन सेकंड कॉल, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी एप्लीकेशन कीजिए. इसके और भी बेनिफिट्स है, दिस वीडियो विल गाइड यू अबाउट इट, बट दिस इज योर थर्ड मेजर रिजेक्शन जो आपके साथ भी हो सकता है. ओके, एज वी वर टॉकिंग अबाउट एसओपी, वन मोर थिंग दैट गोज इन योर एसओपी इज कि एसओपी में जो डिटेल्स लिखी जाती है वो तो सही है बट व्हाट पीपल से इज दैट देयर शुड बी अ फॉर्मेट. एक तरीका होता है लिखने का. आई एम टेलिंग यू दिस इज रॉन्ग. बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूँ एसओपी बनाने का कोई तरीका नहीं है. Everything depends on the story that you are writing and the things that you are mentioning in it. It is important that you mention this six things in your resume, in your SOP. वो 6 चीज़ें आप जानने के लिए SOP की शायद यही है और बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई है, वो वीडियोस चेकआउट करिएगा SOP के बारे में. बट द थिंग इज कि SOP में बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, सिर्फ फॉर्मेट्स आपको रिजेक्शन नहीं आता है. सो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखें. द मेजर पॉइंट मैंने इसमें इंक्लूड किया है एस कि आपकी वो जो 6 चीज़ें हैं, वो जो 7 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मेंशन होनी चाहिए. फॉर्मेट कैन बी एनीथिंग बट येस यू कैन राइट इट एज अ नेक्स्ट पॉइंटर विच इज फॉर्मेट ऑफ योर SOP. दैट मीन्स बाय फॉर्मेट आई मीन्स दो 6-7 थिंग्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर SOP. सो वो चीज़ों को इंक्लूड करिए, क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ इट एंड यू आर गुड टू गो विथ एनी फॉर्मेट दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योर SOP एज लॉन्ग एज इट हैज़ अ स्टोरी. ओके, हमारे एग्जाम्पल में जो हमने बताया था वन वॉज अबाउट कि उन्होंने वेरोना में अप्लाई किया था, एवरीथिंग वॉज करेक्ट इन दैट एग्जाम्पल बट शी स्टिल गॉट रिजेक्टेड एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम वॉज अबाउट सबमिशन कंफर्मेशन. अब ये क्या होता है, द थिंग इज द मोमेंट यू सबमिट योर एप्लीकेशन, आपने सब कुछ कर लिया, इट इज द टाइम दैट यू क्लिक ऑन दैट सबमिट बटन. आप ऐसे क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे एंड द थिंग इज यू डिडंट गेट द कंफर्मेशन कि आपका सबमिशन हुआ है कि नहीं. इट शुड बी आइदर ऑन योर पोर्टल आइदर ऑन द मेल. आपके पास कहीं ना कहीं से आपके पास कंफर्मेशन होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है. या टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, नेटवर्क एरर हो सकता है, जो आपका पोर्टल है उस पर कोई ग्लिच हो सकता है जिसकी वजह से आपकी वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई है बट आपको ऐसा लग रहा है कि सबमिशन हो गया है. एंड अगर ये चीज़ होती है तो आपको तो लग रहा है कि यार सब तो सही है, तो इस चक्कर में भी आपको रिजेक्शन क्या मतलब एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो तो इवेंचुअली आपके लिए तो रिजेक्शन ही हुआ ना वो, क्योंकि आप सबमिट कर ही नहीं पाए, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है. तो आपको क्या करना है, आपको मेल चेक करना है, आपको पोर्टल को चेक करना है, लॉग इन करिए, बार बार चेक करिए अंटिल यू गेट ए कंफर्मेशन. वेरोना में लास्ट ईयर इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको मेल पर कंफर्मेशन आना चाहिए. अगर आपको मेल पर कंफर्मेशन आ गया है कि आपकी बुकिंग हो गई है, आपकी एप्लीकेशन हो गई है, तो ही उसको कंफर्मेशन आप मानकर चलेंगे, वरना आपको ध्यान रखना है आस्क द यूनिवर्सिटी और डू द री एप्लीकेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दिस लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम है मनीष. आई वांटेड दिस एक्स कोर्स, इट इज अवेलेबल ऑन देयर पोर्टल, व्हाट्स रॉन्ग, आई विल अप्लाई टू दिस एक्स कोर्स एंड आई विल गो टू इटली. Absolutely, you are correct, but to a certain extent. Actually, there is a catch when you check at the language section. You might see is it might be written dual language, or it might be there will be a logo of Italian, or there will be a logo of English. अब होता क्या है, there are courses available in dual languages. उसमें क्या होता है कि आधा इंग्लिश में सिखाया जाता है, आधा इटालियन में सिखाया जाता है. You might end up doing the mistake of applying to this course.
एंड यहाँ पे इट विल मेस अप. यू हैव टू नाउ स्टडी इन पार्शियली इंग्लिश एंड पार्शियली इटालियन. या तो फिर जो आपने कोर्स देखा है उस पर क्लियरली लिखा है, एक इटालियन का लोगो लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली इन इटालियन लैंग्वेज एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर अ स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टडी इन इंग्लिश. That is the problem, that before applying to any course please check करिए. बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते क्या बोलते हैं, आउट ऑफ ये जो एप्लीकेशंस और सब मैंने आपको बताया, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि यार ये तो पोर्टल पे दिख रहा है, आप क्यों नहीं सबमिट कर रहे मेरी एप्लीकेशन. एक्चुअली पोर्टल पर अवेलेबल है बट दैट इज इन इटालियन लैंग्वेज. वो आप थोड़ा डीपली देखेंगे तो आपको दिख जाएगा. सो इस चीज़ का ध्यान रखें. प्लीज चेक आउट करें दैट यू आर अप्लाइंग टू एन English taught program and not an Italian language and not a dual language course. Okay, the next thing is that you did everything right. आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है. बाय प्रोफाइल आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपकी जितनी भी चीज़ें होती है सब परफेक्शन वाली है, बट स्टिल यू गॉट रिजेक्शन बिकॉज जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी यू डिडंट फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट. सब सही किया था आपने, बट यूनिवर्सिटी क्या बोल रही थी कि मुझे तो आइल्स चाहिए था यार, आपके पास आइल्स नहीं है. इट विल ब्रिंग रिजेक्शन. अनदर थिंग, आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया है ना उसमें वो बोल रहे हैं कि आपके पास टॉल्क भी होना चाहिए, आपके पास टॉल्क नहीं है, रिजेक्शन. अनदर थिंग, एक और लास्ट एग्जांपल मैं एक और दे देता हूँ कि आपका साइंस बैकग्राउंड है, सॉरी आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है. फॉर एन एग्जांपल आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, यू वांट टू अप्लाई टू अ कोर्स व्हिच इज रिलेटेड टू साइंस. ऑफ कोर्स यू आर नॉट into that course, आपका बैकग्राउंड उस कोर्स का नहीं है, you are not relevant to that course. Because of that relevancy and your previous education, again all you will receive is a rejection because you are not capable. According to them, you are not actually into that course and this will surely bring rejection to your profile. Now last two very simple rejections are here. ये बहुत सिंपल से दो रीजंस हैं, रिजेक्शन नहीं रीजंस है. दैट इज वन इज अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट एंड अनदर इज क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट. दे गो हैंड इन हैंड. अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट व्हाट डज दिस मीन्स इज कि आपको जितनी भी डिटेल्स बननी है पासपोर्ट के हिसाब से बननी है, बिकॉज एवरीथिंग दे हैव फॉर योर पर्सनल आइडेंटिटी इज योर पासपोर्ट. उनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पासपोर्ट से ही मैच करते हैं, पासपोर्ट से ही वेरीफाई करते हैं, बिकॉज दैट इज योर ऑफिशियल आइडेंटिटी एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कम ऑन. सो ऑफकोर्स वो सारी डिटेल्स इससे मैच करते हैं. जो इसमें लिखा है वो पत्थर की लकीर है आपके लिए जी. जो आपने पासपोर्ट में लिखा है ना, इसके बेस पर आपको पूरी एप्लीकेशन, हर एक चीज़, SOP, ये वो सब कुछ इसके बेस पर करना है. सो ध्यान रखें कि सारी डिटेल्स आपकी SOP अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट हो, बिकॉज ये बाइफर्गेशन नहीं बट ये जो डिफरेंसेस हैं दिस कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स टू यू. इस चीज़ का भी ध्यान रखें. एंड द लास्ट थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट. यार इमेज ही ब्लर है, जो आपने SOP दिया है वो ही ब्लर है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करे हैं 10th-12th की मार्कशीट, बैचलर्स की मार्कशीट, यूरोपास CV, ये सब आपने एक गंदी सी क्वालिटी की इमेज ली और वो आपने पोर्टल पे अपलोड कर दी. आपके पासपोर्ट की जो फोटो है, जो आपने PDF बनाया है, दैट इज नॉट इन अ गुड कंडीशन. क्लियरली विजिबल नहीं है, ब्लर्ड है डॉक्यूमेंट, नंबर्स विजिबल नहीं है, डिजिट्स विजिबल नहीं है. श्योरली द लास्ट थिंग दे विल डू इज गिव यू अ रिजेक्शन. ये सारी चीजें हैं जो होती है आपके साथ. So yes, and such a so-called small video, इतने सारे ड्रामा के बाद so-called इस छोटी सी वीडियो में इतना ही था. I have given you all the reasons इसकी वजह से रिजेक्शन आ सकते हैं. हालांकि आपके पास और भी अभी भी कुछ डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल कमेंट्स में पूछेगा. अगर आपके जो भी डाउट्स है वर्थ इट है तो बिल्कुल हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे. आई गेस इस वीडियो में इतना ही था. ये सीरीज चेकआउट करिएगा, यूनिवर्सिटी सीरीज चल रही है, आई बटन भी देखिएगा एंड बहुत सारी वीडियोस आपके लिए 2025 के लिए आने वाली है. उन सबके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.